देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଯଦି କେହି ବସ୍, ରେଳ ବା ବିମାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଏପ୍ରିଲ 28ରୁ MS ଲ କଲେଜ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ MS ଲ କଲେଜକୁ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 21ରୁ ଅଧିକ ଆଇନ କଲେଜ ରହିବ ବୋଲି MS ଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, 12ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ 6 ଜୋନ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭା। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ପିପିଲିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଓ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 12 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଳ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭା କରିବେ। ପିପିଲିର 25 ପଞ୍ଚାୟତ, ଡେଲାଙ୍ଗର 21 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପିପିଲି NSCର 16ଟି ୱାର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭା 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯିବ। ନମ୍ବର 4, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୀମାରେ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୀମାରେ ଚେକପୋଷ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, 11ରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ। ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯଦି 100 ପାଖାପାଖି କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବେ ସେଠାରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖରୁ ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନେ ହିଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମୟ ସାରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମୟ ସାରଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏପ୍ରିଲ 10ରୁ ପୁରୀରୁ ରାତି 9:45 ପରିବର୍ତ୍ତେ 9:55ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି 10:30 ପରିବର୍ତ୍ତେ 10:35ରେ ପହଞ୍ଚି ରାତି 10:35 ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତି 10:40ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ସାରଣୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन रु गंतव्य स्टेशन मध्य समय सारणी अपरिवर्तित रहिबो। नंबर 8 खूब शीघ्र पूर्ण कार्यक्षम हेब ओडिशा मारिटाइम बोर्ड। ओडिशा रे सुदीर्घ बेलाभूमि रही सागरमाला प्रकल्प राज्य को एक प्रमुख माल परिवहन स्थल में परिणत करिबो। बंदर गुड़िकर विकास करी शिल्पायन और जोगाजोग व्यवस्था रे उन्नति आनिबा एही प्रकल्पर लक्ष्य। उपकूल अंचल में बास करुथुबा गोष्ठी गुड़िकर विकास को एही प्रकल्प सहित जोड़ाजिबो। राज्य सागरमाला कमिटीर प्रथम बैठक में अध्यक्षता करी काली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही सूचना दैछंती। से कहिसंती जे पारादीप बंदर व्यतीत राज्य सरकार ओडिशा उपकूल में अन्य बंदरर विकास पई पदक्षेप नेउछंती। आसंता किछि मास मध्य राज्य मारिटाइम बोर्ड पूर्ण कार्यक्षम होगा आशा रही। राज्यर नौ वाणिज्य क्षेत्र में यह बोर्ड एक उत्प्रेरक भाव कार्य करिबो। नंबर 9 नक्सलंक कबड़रू मुकुड़िले अपहृत जवान राकेश्वर। सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में गत शनिवार दिन नक्सल मानक द्वारा अपहृत होता सीआरपीएफ कोबरा बाटालियन जवान राकेश्वर सिंह मानहाल काली मुकुड़िछंती। माओवादी माने दीर्घ 5 दिन जाए तांको बंदी करी रखिबा परे जवान राकेश्वर को छाड़ी देइछंती। राकेश्वर को जंगल निकटस्थ ग्राम में आयोजित एक प्रजा कोर्ट में हाजर कर जाइथिला और यापर शह शह ग्रामवासी उपस्थिति रे तांको छड़ा जाइथिबा सूचना रही। सरकार पक्षर माओवादी को भेटिबाको जाइथिबा मध्यस्थी आलोचना परे राकेश्वर मुक्त होइछंती। पद्मश्री धरमपाल साइनी और गंडवाना समाजर मुख्य तेलम बुराइया एवं स्थानीय सामाजिक माओवादी आलोचना करिबा परे बिना कोनोसी शर्तरे माओवादी राकेश्वर को मुक्ति करिसंती। नंबर 10 राज्य में गत 24 घंटा भितर 879 जन पॉजिटिव चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्यर 879 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। खोर्धा रे 144, सुंदरगढ़ रे 131, अनुगुड़ रे 20, बालेश्वर 22, बरगढ़ रे 53, भद्रक रे 17, बलांगीर रे 24, कटक रे 50, बौद्ध रे जणे, जगतसिंहपुर रे 2 जन चिन्हट होइछंती। सेहीपरि देवगढ़ गजपति रे जणे लेखाएं, गंजाम रे 31, जाजपुर रे 15, झारसुगुड़ा रे 23, कलाहांडी रे 43, कंधमाल रे 5, केन्द्रापड़ा रे 9, केउंझर रे 25, कोरापुट रे 5, मयूरभंज रे 29, नवरंगपुर रे 19, नयगढ़ रे 6, नुआपड़ा रे 61, पुरी रे 45, रायगढ़ रे 13, संबलपुर रे 48, सोनपुर रे 2, स्टेट पुल रु 32 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नंबर 11 ओडिशा रे छत्तीसगढ़ परिस्थिति सृष्टि हेबा संभव नुहे कहिले आईएलएस निर्देशक। राज्य में कोविड स्थिति को नहीं आईएलएस निर्देशक अजय परिड़ा प्रतिक्रिया दी कहिसंती भाइरसर एही स्ट्रेन पूर्व स्ट्रेन अपेक्षा अधिक क्षतिकारक। यह द्वितीय स्ट्रेन द्रुत गति संक्रमण करुछि जहाँ चिंताजनक। जो भली भावे वर्तमान संख्या बढ़ुछि ताहा चिंतार विषय। आगको कौन हेब किछि कहि हेबनी, केबे कमिबा ता अनुमान करि हेउनी। आमे भाइरसर एही नुआ स्ट्रेन उपरे परीक्षा निरीक्षा चढ़ेइछु। लोक माने सचेतन हेबा निहाती दरकार। जदि लोक माने सचेतन न हेबे परिस्थिति बहुत भयंकर हेबो। ओडिशा रे छत्तीसगढ़ परिस्थिति सृष्टि हेबा असंभव नुहे। परिस्थिति को देखि राज्य सरकार निष्पत्ति नेउछंती, आगको भी किछि बड़ निष्पत्ति नै पारंती। नंबर 12 लॉकडाउन समय उड़ाण बातिल पाई यात्री अर्थ फेराओ कहिले सरकार। कोविड-19 संक्रमण कारण गत वर्ष भारत में दीर्घकाल विमान सेवा व्याहत होइथिला। विमान यात्रा करिबा पई जो माने आगो टिकेट बुकिंग करिथिले सेमानकर अर्थ तुरंत फेरैबाकू केंद्र सरकार विमान चलाचल कंपनी गुड़ी को निर्देश दैछंती। बुधवार दिन केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय विमान चलाचल कंपनी गुड़ी को लॉकडाउन कारण उड़ाण करि पारि नथिबा यात्री मानकर टिकेट बुकिंग बाबद अर्थ फेरस्तरे विलंब करुथिबारु तीव्र असंतोष प्रकाश करिसंती। एथि सहित एक क्रेडिट सेल स्थापन करा जाई उक्त यात्री मानक भविष्य में यात्रा करिबा पई पूर्वर पीएनआर नंबर आधार में क्रेडिट नोट जोगई देवा संपर्क में बैठक में आलोचना करा जाइथिला। नंबर 13 नवरंगपुर जिले में राज्यर प्रथम सौर पवन चालित जलसेचन प्रकल्प लोकार्पित। नवरंगपुर जिले में खनिज पदार्थ प्रजुक्ति प्रतिष्ठान भुवनेश्वर पक्षर राज्य में प्रथम सौर पवन चालित उन्नत जलसेचन प्रकल्प लोकार्पित होइछि। काली तेंतुड़ीखुंटी ब्लॉकर पात्रापुट ग्राम ठारे 13 लाख टंका व्यय राज्यर प्रथम सौर पवन चालित जलसेचन प्रकल्प को नवरंगपुर सांसद रामेश्वर चंद्र माझी उद्घाटन करिसंती। एही प्रकल्प रे दिन में सौरशक्ति माध्यम जलसेचन होउथिबा बेले राति रे पवन द्वारा जलसेचन होई पारुछि। 340 वाट क्षमता विशिष्ट सौर पैनल द्वारा सौरशक्ति माध्यम गभीर नलकूपर जलसेचन व्यवस्था रहिता बेले 3.5 किलोवाट बेगर पवन टर्बाइन द्वारा जलसेचन होई पारुछि। नंबर 14 तिब्बत रे सामरिक शक्ति वृद्धि पाई चीन सेनार योजना। भारत चीन मध्य चलता सीमा विवादर समाधान पाई शुक्रवार दिन आउ एक कमांडर स्तरीय आलोचना अनुष्ठित होबार संभावना रही। मिलिथिबा सूचना अनुसार एथरर कथबार्ता अवशिष्ट स्थान सैन्य प्रत्याहार पाई हेबो। अन्य पक्षरे चीन सेनार केतेक प्लाटून अक्साई चीन अंचल को गति करबा आरंभ करिसंती। सेठारे सेमाने वार्षिक समराभ्यास करिबार संभावना रही। गत वर्ष एप्रिल मासरे चीन सेना पूर्व लद्दाख अंचल अभ्यास करबा बाहानारे आसी आउ पछकु फेरी नथिले। एहा परे दुई देश मध्य विवाद आरंभ होइथिला। एणु ए वर्ष मध्य चीन अभ्यास आरंभ करने जाउथिबारु ताहा उपरे भारत नजर रखिछि। सेहीपरि तिब्बत रे भी चीन सेना निजर शक्ति बढ़ी चलीछि। गोटिए पटे चीन भारत को कथबार्ता व्यस्त रखुथिबा बेले अन्य पटे लद्दाख रे निजर सामरिक भित्तिभूमि को दृढ़ करि चलीछि।
नंबर 15 बीजेपीर शुभेन्दु अधिकारी को निर्वाचन कमिशन नोटिस धर्म को नहीं विवादीय बयान देथिबा अभियोग रे निर्वाचन कमिशन बीजेपीर नंदीग्राम प्रार्थी शुभेन्दु अधिकारी को नोटिस करिसंती। निज भाषण उपर स्पष्टीकरण रखिबाकू कमिशन श्री अधिकारी को 24 घंटार समय देइछंती। नोटिस रे कहुଯାଇଛି जे सीपीआई एमएल सेंट्रल कमिटीर कविता कृष्णन आम निकटरे अभियोग करिसंती। गत मासरे शुभेन्दु अधिकारी नंदीग्राम रे भाषण देबा बेले विवादीय तथा घृणा सृष्टिकारी शब्द प्रयोग करिथिबा से तांको अभियोग रे दर्शाइछंती। एहाकू तर्जमा करिबा परे एथिरे सत्यता थिबा बडी मने हेउछि। निज भाषण जरिए श्री अधिकारी निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करिसंती। एही कारणरू निजर बयान उपरे जवाब रखिबाकू तांको 24 घंटार समय दिया जाइछि। नंबर 16 संपूर्ण लॉकडाउन विरोध में सतर्क कराइले हु मुख्य वैज्ञानिक। देश में संक्रमण बढ़ी चली विभिन्न राज्य में आंशिक लॉकडाउन जारी होईछि। संपूर्ण लॉकडाउन करने विचार विमर्श चली किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठनर मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन एने सतर्क कराइछंती। संपूर्ण लॉकडाउन कले परिणति अति भयंकर हेबो बोली स्वामीनाथन कहिसंती। लोकमाने द्वितीय लहर को रोकिबा दिगरे उचित पदक्षेप ग्रहण करिबा पई स्वामीनाथन अनुरोध करिसंती। संपूर्ण लॉकडाउन कले स्थानीय संक्रमण बढ़िबो एवं लॉकडाउन उठिबा परे यह भयानक गोष्ठी संक्रमणर रूप नेब एवं तृतीय लहर पई रास्ता खोलिदेब बोली से कहिसंती। विश्व स्वास्थ्य संगठनर आंचलिक निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल कहिसंती संक्रमण एक नुआ लहर व्यापी चली टीकाकरण प्रक्रिया त्वरान्वित करने को हेबो। नंबर 17 आवश्यक प्रक्रिया अनुसरण नकरी रोहिंग्या मानक प्रत्यर्पित कराई परिबो नाही कहले सुप्रीम कोर्ट। रोहिंग्या शरणार्थी मानक प्रत्यर्पण प्रसंग में काली एक बड़ राय शुणी सुप्रीम कोर्ट। आवश्यक प्रक्रिया पालन नकरी रोहिंग्या मानक म्यांमार को प्रत्यर्पण कराई परिबो नाही बोली कोर्ट कहिसंती। जम्मू में 170 जन रोहिंग्या को अटक रखा चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे एक पिटिशन दायर कर मुक्ति पई रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला एही पिटिशन दायर करथिले। यार शुणाणी करी कोर्ट एही निर्देश दैछंती। या सहित म्यांमार को रोहिंग्या मानक प्रत्यर्पण को नहीं कोर्ट चिंता प्रकट करिसंती। तेबे शुणाणी बेले केंद्र सरकार कहिथिले जे भारत को अवैध शरणार्थी अनुप्रवेशकारी राजधानी करने को दियाजिबो नाही। रोहिंग्या माने शरणार्थी नुहंती बोली मध्य केंद्र सरकार कहिथिले। नंबर 18 टीकाकरण पर भी यूपीर 40 डाक्तर कोविड-19 संक्रमित। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीर कुलपति समेत 40 जन डाक्तर कोविड संक्रमित थिबा चिन्हट होइछंती। तेबे गुरुत्वपूर्ण विषय है यह समस्त डाक्तर कोविड-19 प्रतिषेधक टीका नहीं। मेडिकल यूनिवर्सिटीर कुलपति अवसरप्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी कोविड-19 टीकार 2टी डोज नेला परे भी द्वितीय थर पर पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। गत अगस्ट रे कुलपति पुरी प्रथम थर पर कोविड-19 संक्रमित होइथिले। मार्च 25 रे तांको कोविड-19 टीकार द्वितीय डोज दिया जाइथिला। अधिकांश डाक्तर टीकार 2टी जाक डोज नहीं सारिथिबा परे भी नमूना परीक्षा रे पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नंबर 19 निर्वाचन रैली रे मास्क काहेकि गुरुत्वपूर्ण नुहे बोली पचारिले दिल्ली हाईकोर्ट। संप्रति केतेक राज्य और केन्द्रशासित अंचल में चली निर्वाचन प्रचार अभियान रे संपृक्त व्यक्ति मानक लागि मास्क व्यवस्था बाध्यतामूलक कराଯାऊ नाही काहेकि बोली एक पिटिशन को आधार करी गुरुवार दिन दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार और निर्वाचन कमिशन को पचारिछंती। केंद्र सरकार तरफ काउंसिल अनुराग अहलुवालिया एही नोटिस ग्रहण करिछंती। एप्रिल 30 तारिख दिन आवेदनर परवर्ती शुणाणी हेबो बोली अदालत दिन धार्य करिछंती। नंबर 20 अनिल देशमुख को सुप्रीमकोर्ट झटका जारी रहिबो सीबीआई तदंत। महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीमकोर्ट झटका देइछंती। तांको विरोध में आसिथिबा दुर्नीति अभियोगर तदंत सीबीआई द्वारा ही कराजिबो बोली सुप्रीमकोर्ट स्पष्ट करिछंती। मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमवीर सिंह किछि दिन तळे अनिल देशमुख विरोध में 100 कोटी टंका चांदा आदाय अभियोग आनिथिले। यार तदंत सीबीआई द्वारा कराइबाकू बॉम्बे हाईकोर्ट निर्देश देइथिले। बॉम्बे हाईकोर्टक राय उपरे रोक लगाइबाकू देशमुख और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीमकोर्ट रे जो आवेदन करथिले किंतु यह खारज हो जाइछि। यार अर्थ देशमुखक विरोध में आसिथिबा अभियोगर तदंत सीबीआई द्वारा ही कराजिबो। नंबर 21 दंत नदी अववाहिकार थिला पुरातन प्रस्तर जुगर सभ्यता। संबलपुर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर इतिहास विभाग पक्षर बरगढ़ जिलार उपरमुंडरे थिबा दंत नदी उपत्यकार भटली निकटरू पुरातन प्रस्तर जुगर मानव सभ्यतार अवस्थिति ठाब कर जाइछि। एथिरु प्रस्तर जुगर प्राक और उत्तर समयर कलाकृति बा अवशेष ठाब कर जाइछि। डेब्रीगढ़ पर्वतमाଳାର दक्षिण दिगरे दंत नदी कूड़ और भोटली निकटस्थ तोराजुंगा ग्राम रे गवेषक माने निरंतर अनुसंधान समय से जुगर अवशेष ठाब करिसंती। एथिरु संग्रह करा जाइथिबा अवशेष गुड़िक 65,000 वर्ष पुरातन मध्य प्रस्तर जुग और 25,000 वर्ष पुरातन उत्तर प्रस्तर जुग समय बोली कहुछि। गवेषणा मूर्तिका परीक्षार दंत नदी कूड़े थिबा जंगल भूमि आधारित सभ्यता कृषि आधारित सबुजिमा शैलीर प्रकार को परिवर्तित होइतिबा जणा पड़िछि। पुरातन प्रस्तर जुग और उत्तर पुरातन प्रस्तर जुग समय सही जगार मानव सभ्यता थिबा मध्ये उच्चतर गवेषणा जणा पड़िछि।
नंबर 22 नोएडा नाइट कर्फ्यू एप्रिल 17 पर्यंत रहिबो बलवत्तर। देश में कोविड संक्रमण बढ़ुथिबारु विभिन्न राज्य में कटकणा कड़ाकड़ी कर जाइथिबा बेले एबे नोएडा नाइट कर्फ्यू लागू कर जाइछि। संक्रमण बढ़िबारु कालिठारु एप्रिल 17 पर्यंत नोएडा नाइट कर्फ्यू लागू कर जाइछि। राति 10टारु सकाळ 5टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू लागू कर जिवो बोली जणा पड़िछि। तेबे नोएडा समेत ओडिशार किछि जिल्ला एवं महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर जाइछि। महाराष्ट्र में सप्ताहांत लॉकडाउन सह मध्य प्रदेश में मध्य आसंताकाली संध्या 6टारु सोमवार संध्या 6टा पर्यंत समस्त सहरांचल में लॉकडाउन जारी हेबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 23 गया रे निर्माण हेबो लक्ष्मण झूला प्रशासनिक स्वीकृति को अपेक्षा। बिहार गया रे निर्माण हेबो लक्ष्मण झूला। आगामी दिन में यह योजना उपरे काम करने को प्रस्तुति चली। विष्णुपद मंदिर स्थित देवघाटू सीताकुंड मध्य लक्ष्मण झूला निर्माण करने को योजना चली। प्रशासनिक स्वीकृति मिलवा पर शीघ्र यह योजना रे काम आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछि। एही झूला पोल द्वारा तीर्थयात्री को बहुत सुविधा मिलिबो। झूला निर्माण पर 3 किलोमीटर दूरता 1 किलोमीटर होइजिबो और तीर्थयात्री सहजरे देवघाटू सीताकुंड जाइपारिबे। पोल पई पाखापाखि 65 कोटी टंका खर्च हेबो। निर्माण कार्य खूब शीघ्र आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछि। सबु प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि, केवल प्रशासनिक स्वीकृति को अपेक्षा रहिछि। नंबर 24 एनटीपीसी रे नियुक्ति ପାଇଁ प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। नुआदिल्ली स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एनटीपीसी 35 टी पदवी रे नियुक्ति ପାଇଁ विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। तेबे एग्जीक्यूटिव सेफ्टी 25, एग्जीक्यूटिव आईटी 8, सीनियर एग्जीक्यूटिव सोलार 1 और स्पेशलिस्ट सोलार 1 आदि पदवी ପାଇଁ नियुक्ति बाहरिछि। एही पदवी ପାଇଁ जो प्रार्थी माने मनोनीत हेबे से माने 3 वर्ष ପାଇଁ नियुक्ति पाइबे। जो प्रार्थी माने एही पदवी ପାଇଁ आवेदन करबाको चाहंती से माने ntpccareers.net एही लिंक उपरे क्लिक करी एप्रिल 15 तारिख भितर आवेदन करि परिबे। जनरल ईडब्ल्यूएस किंबा ओबीसी वर्गर प्रार्थी माननकु 300 टंका पंजीकरण फी देबाकू पड़िबो, जहाँकि फेरस्त हेबो नाही। सेहीपरि अन्य कोनोसी वर्ग अधीन रे आवेदन करुथुवा प्रार्थी माननकु कोनोसी पंजीकरण फी देबाकू पड़िबो नाही। नंबर 25 भारत में रेकर्ड संख्यक 1,26,799 नुआ कोविड-19 आक्रांत चिन्हट। महामारी व्यापीबा दिन ठारू आज को मिसई 4 दिन मध्य देश में 3 थर दैनिक संक्रमण संख्या 1 लाख टपिछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार गुरुवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य रेकर्ड संख्यक 1,26,799 भाइरस जनित नूतन संक्रमण और 685 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 26 भारतरू आसुवा यात्री माननकु न्यूजीलैंड प्रवेश मना। कोविड-19 संक्रमण मामला व्यापक भाव वृद्धि पाउथिबारु एप्रिल 11 ठारू भारतरू आसुवा समस्त यात्री न्यूजीलैंड प्रवेश उपरे सामयिक भाव निषेधाज्ञा जारी कर जाइथिबा कथा न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न घोषणा करिसंती। न्यूजीलैंड निजस्व नागरिकों समेत समस्त यात्री जारी होइथिबा निषेधाज्ञा एप्रिल 11 तारिख स्थानीय समय अपराह्न 4 ठारू एप्रिल 28 तारिख पर्यंत बलवत्तर रहिबा बोली प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न कहिसंती। पुनर्बार यात्री माननकु देश प्रवेश अनुमति देबा लागि एही निषेधाज्ञा जारी समय मध्य रिस्क मैनेजमेंट पदक्षेप सबुर व्यवस्था कराजिबो बोली से कहिसंती। नंबर 27 टीका अभाव बंद है मुंबईर 26 टी टीकाकरण केन्द्र। देशर कौन राज्य में टीकार अभाव नहीं बोली केन्द्र दावी करुथिबा बेले काली टीका अभाव मुंबईर 26 टी टीकाकरण केन्द्र बंद होइतिबा जणा पड़िछि। टीका पई केन्द्र को कुहाଯାଇଛି एवं टीकार डोज आसिबा परे बंद होइतिबा टीकाकरण केन्द्र पुणी थे चालू कर दिया बोली कही महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राजेश टोपे कहिसंती। बंद होइतिबा 26 टी टीकाकरण केन्द्र मध्यरु 23 टी नवी मुंबई रे थिबा जणा पड़िछि। महाराष्ट्र समेत दिल्ली रे मध्य टीका अभाव टीकाकरण केन्द्र बंद होइतिबा नै खबर मिलिछि। टीका जोगाण बेग मध्य खूब मंथर। केन्द्र आमको टीका देउना बोली मु कहू नाही, किंतु जोगाण बेग खूब मंथर बोली महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहिथिले। नंबर 28 ज्ञानव्यापी मस्जिद खनन पई एएसआई को कोर्टक निर्देश। वाराणसी बा काशीर प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर परिसर में थिबा ज्ञानव्यापी मस्जिद खनन पई एक स्थानीय कोर्ट भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण संस्था अर्थात एएसआई को अनुमति देइछंती। एही खनन कार्यर समस्त खर्च वहन करबाकू कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देइछंती। ज्ञानव्यापी मस्जिद को हिंदू मानकू दिया जाऊ बोली दाबी करी जणे स्थानीय वकील VS रस्तोगी वाराणसी जिला कोर्ट रे एक पिटिशन दायर करथिले। तेबे रस्तोगी को पिटिशन को ज्ञानव्यापी मस्जिद कमिटी विरोध करथिले। अयोध्या राम मंदिर पर काशी विश्वनाथ मंदिर खनन पई एएसआई को निर्देश दिया पर भविष्य में यह आउ एक बद सृष्टि होवर आशंका रही। जिला कोर्टों ए राय विरुद्ध में मस्जिद कमिटी हाइकोर्ट में आवेदन कर संभावना रही। नंबर 29 आईपीएल मुंबई और बांगालोर मध्य उद्घाटनी मुकाबिला।
पुनर्बार आरंभ होगा जाऊँगी इंडियन प्रीमियर लीग्र 14तम संस्करण। 5 थर चैंपियन मुंबई इंडियंस विराट कोहली नेतृत्वाधीन रॉयल चैलेंजर्स बांगालोर को उद्घाटनी मुकाबिला भेटिबो। संध्या 7:30 रे बिना दर्शक यह हाई वोल्टेज मुकाबिला संपूर्ण स्टाइल रे आरंभ हेबो। बांगालोर विपक्ष में मुंबईर प्रदर्शन निकट में भल रही। दल शेष 10टी मुकाबिला 8टी रे विजय हासिल करिछि। तेबे आईपीएल प्रथम मुकाबिला मुंबई सबुठारु अधिक 8 थर पराजित होइछि। नंबर 30 पाकिस्तान फुटबॉल संघ को निलंबन कला फीफा। विश्व फुटबॉल परिचालना संस्था फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित करिछि। तृतीय पक्ष को अंतर्भुक्त करने अभियोग रे फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित करिछि। तुरंत यह कार्यकारी करने नहीं मध्य फीफा काउंसिल परिषद पक्षरु निष्पत्ति नि जाइछि। फुटबॉल परिचालना रे तृतीय पक्षर हस्तक्षेप फीफार नियम को उल्लंघन करुछि। फीफार निष्पत्ति को नहीं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मुख्यालय लाहौर रे विक्षोभ देखा मिलिथिला। घटनार समाधान बदल में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तृतीय पक्ष को सामिल करिथिला, जहाको नहीं फीफा क्षुब्ध हेबा सहित एभली कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।